Hello and welcome to the second class of APC Mains Answer Writing. Today we will discuss about PYQs related to GS Paper 2. GS Paper 2 সম্বৰ্ধিত যিখিনি বিষয় আছে তাৰ লগত জড়িত যিবোৰ PYQ আছে সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম. The first question is, the Constitution of India is a living instrument with capabilities of enormous dynamism. কোৱা হৈছে যে আমাৰ যিখন কনষ্টিটিউশ্যন আছে সেইখন এখন লিভিং ডকুমেণ্ট হয়, লিভিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হয়, আৰু ইয়াৰ কেপাবিলিটি আছে যে ডাইনামিজিমৰ ইয়াৰ বহুত কি আছে, কেপাবিলিটি আছে বা এনাৰ্মাছ স্কোপ আছে বুলি কোৱা গৈছে. চ' ইট ইজ এ কনষ্টিটিউশ্যন মেড ফৰ এ প্ৰগ্ৰেছিভ ছ'চাইটি. চ' এইখন এখন এনেকুৱা সংবিধান যিখন এখন প্ৰগ্ৰেছিভ বা বিকাশশীল সমাজৰ কাৰণে বনোৱা এখন সংবিধান হয় বুলি কোৱা গৈছে. চ' यहाँ पे ঠিক আছে, ইয়াতে কি আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব, এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিব পাৰোঁ that I have already given here. The Constitution of India is a living document, adapts to the nation's evolving needs. ঠিক আছে, চ' আমাৰ যিখন কনষ্টিটিউশ্যন আছে মানুহৰ সময়ে সময়ে আমাৰ যি নেশ্যন, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰৰ বা আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ যিবোৰ প্ৰয়োজন সেই প্ৰয়োজনবিলাকক जो भी हमारी ज़रूरतें हैं उसको अडॉप्ट करने के लिए ही, ठीक है. सो अडॉप्ट करने के लिए ये लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह ये काम करते हैं विद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एनहेंसिंग इट्स इम्पैक्ट. ठीक है, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है उसको और ज़्यादा एनहेंस इसको इस पर्टिकुलर लिविंग डॉक्यूमेंट को किया है. ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की बारे में बात हो रहा है. ठीक है, इट्स डायनेमिज्म हैज़ ब्रॉडन फंडामेंटल राइट्स, एम्पावर्ड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप and fostered a more inclusive society, affirming its foundational role in democratic India. ই কি কৰিছে, ফাউণ্ডেশ্যনেল ৰাইটছক কি কৰিছে, ব্ৰড কৰিছে. আমি দেখিছোঁ যে আৰ্টিকল 21ৰ ভিতৰতো বহুত কিছুমান বস্তু ইনক্লুড কৰা গৈছে. ঠিক আছে, বা বেলেগ বেলেগ আৰ্টিকলত বহুত কিছুমান নতুন নতুন বস্তু সোমোৱাইছে. চ' ইট হেজ ব্ৰডেন দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ. তাৰ লগতে যিখিনি মাৰ্জিনেলাইজ গ্ৰুপ আছে, ঠিক আছে, বেচিকেলি যিখিনি দ্য বেকৱাৰ্ড ক্লাছেছ or for you can say like in the past about females, ঠিক আছে, তেওঁলোককো কি কৰিছে, এম্পাৱাৰ কৰা গৈছে. এণ্ড ফষ্টাৰ্ড ইন মোৰ ইনক্লুচিভ ছ'চাইটি, এখন আৰু বেছি অধিক ইনক্লুচিভ ছ'চাইটিৰ দিশে আগবঢ়াই নিছে. सो ये जो इंट्रोडक्शन है इसको अच्छे से अपने हिसाब से लिख लेना. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डायनेमिज्म एंड द एक्सपांडिंग हराइजन्स ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. की कोৱা গৈছে যে কনষ্টিটিউশ্যনেল যিটো ডাইনেমিজিম আছে एंड एक्सपांडिंग हॉराइजन्स ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. सो बेसिकली देखो यहाँ पे जो डायनेमिज्म के बारे में अगर बात आता है तो हम लोगों को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के ऊपर हम लोगों को गौर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है. नाउ यहाँ पे देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल डायनेमिज्म क्या क्या है एंड जो हॉराइजन्स है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का उसका कितना ज़्यादा एक्सपांड हुआ है. जैसे राइट टू लिव विद डिग्निटी, ये सबको मालूम है. जैसे मेनका गांधी केस जो था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ बियॉन्ड मियर एग्जिस्टेंस, ঠিক আছে, টু লিভিং উইথ এ ডিগনিটি. কি কৈছে যে যিটো কনচেপ্ট হয় লাইফৰ, ঠিক আছে, এক্সিষ্টেঞ্চ মানে লাইফ নহয়, ঠিক আছে, কৈছে যে ইট ইজ বিয়ণ্ড মিয়াৰ এক্সিষ্টেঞ্চ টু লিভিং উইথ ডিগনিটি ৰিফ্লেক্টিং দ্য কনষ্টিটিউশ্যনছ প্ৰগ্ৰেছিভ নেচাৰ. কৈছে জীৱন এনেকুৱা হ'ব লাগিব য'ত ডিগনিটি থাকিব লাগিব. এণ্ড ৰিমেম্বাৰ ওৱান থিং, যেতিয়াই ৰাইট টু লাইফ উইথ ডিগনিটি থাকিব মেনকা গান্ধী কেছটো আমি কোট কৰিব পাৰোঁ. নেক্সট ইজ ৰাইট টু লাইভলিহুড. ঠিক আছে, जीआई थकाई নহ'ব ন, लाइवलीहुड লাগিব. सो ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये जो केस था 1985 में ये हुआ था, इट अंडरलाइंस द एसेंशियलिटी ऑफ लाइवलीहुड. ठीक है, इक्वेटिंग इट विथ द राइट टू लाइफ. लाइवलीहुडक राइट टू लाइफ, জীৱনৰ যিবোৰ আমাৰ অধিকাৰ আছে সেই অধিকাৰৰ লগত ইকুৱেট কৰা গৈছে. শ্ব'কেচিং দ্য कॉन्स्टिट्यूशंस एडाप्टेबिलिटी टू सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज़. दैट मीन्स बाद में जो भी ये लिखा है ना, रिफ्लेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोग्रेसिव नेचर, या फिर ऐसे शोकेसिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस एडाप्टेबिलिटी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एडाप्टेबिलिटी कितना ज़्यादा है सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज़ के लिए, ऐसे तुम लोगों को वो बाद में ना वो ऐड करना पड़ेगा ताकि जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, उसको सही सही हम लोग जस्टिफाई कर पाए. उसके बाद जो है राइट टू हेल्थ. नाउ राइट टू हेल्थ देखो, द स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मनिंदर सिंह चावला 1997 जो केस था, ठीक है, वहाँ पे जुडिशरी ने ये बोला है कि हेल्थ जो है इट इज़ क्रूशियल टू लाइफ. हेल्थ इज वेल्थ, आप सभी को मालूम है. ठीक है,
ये भी क्या है, प्रोग्रेसिव अप्रोच है टुवर्ड्स सोशल वेलबींग और सोसाइटल वेलबींग, सेम चीज़ें हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ठीक है। फिर राइट टू लाइवलीहुड, फिर आता है राइट टू हेल्थ। सो ये तीन जो है आपको जीना है, बट कैसे जीना है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? विद डिग्निटी। राइट टू लाइवलीहुड, हाँ, राइट टू लाइवलीहुड को किसके साथ इक्वेट किया गया है? बस ये बेसिक पॉइंट्स याद रखिए, राइट टू लाइफ के साथ इक्वेट किया गया है, ठीक है। फिर राइट टू हेल्थ, हेल्थ इज क्रूशियल, ये कहाँ पे बोला था, ठीक है। ओल्गा टेलिस केस किसके साथ रिलेटेड है? मेनका गांधी केस किसके साथ रिलेटेड है? स्टेट ऑफ ये जो तुम्हारा पंजाब वर्सेस महेंद्र सिंह चावला केस है, सो ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट टू हेल्थ के साथ रिलेटेड है। फिर आता है राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट। देखो, जजमेंट इन सी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एम्बेडेड एनवायरमेंटल राइट्स विद इन आर्टिकल 21, अंडरलाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस डायनेमिक रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चैलेंजेस। देखो ना, हमारे जो सोसाइटी का जो नीड है, ठीक है, डिग्निटी के साथ रहना है, डिस्क्रिमिनेशन है तो डिग्निटी यहाँ पे आ गया, ठीक है। लाइवलीहुड, जो भी सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी है वहाँ पे लाइवलीहुड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो राइट टू लाइवलीहुड आ गया। हेल्थ है, हेल्थ सोसाइटल वेलबींग के लिए हेल्थ को रिकॉग्नाइज किया। फिर आया एनवायरमेंटल चैलेंजेस बहुत है, तो राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट को आर्टिकल 21 के तहत इसको भी जजमेंट के थ्रू इंक्लूड किया गया था। समझ में आ रहा है ना? सब चीज़ें ऐसा है कि जो भी रियलिटी है, लाइक विच आर द रियलिटीज और द करेंट सिचुएशंस इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, उस पर कोर्ट ने गौर किया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने। द राइट टू शेल्टर, जो संटी स्टार बिल्डर्स वर्सेस नारायण खीमालाल तोतामे केस था, ये इतना याद नहीं रखने से भी होगा, सब ये तीन लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी मेहता वाला भी याद रखिए। तो वहाँ पे ये किया गया था कि शेल्टर एज एन इंटीग्रल टू द ह्यूमन लाइफ, ठीक है, और राइट टू लाइफ, okay, or you can say like it is equating the court equate it with it right to life, ठीक है। now showcasing the constitution's evolution in recognizing basic human needs. next is right to privacy, ये तो है, ये तो सबसे फेमस है, केस पुट्टस्वामी जजमेंट, ठीक है। सो पुट्टस्वामी केस में ये हुआ था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि कोर्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेसी विद आर्टिकल 21 एंड अडाप्टिंग टू द कॉन्टेम्पोरेरी चैलेंजेस एंड सोसाइटल डिमांड्स। देखो, राइट टू प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसके लिए जो पुट्टस्वामी केस आया था, तो उस टाइम में ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट था, ठीक है, टुवर्ड्स राइट टू प्राइवेसी, यानी इसको आर्टिकल 21 के तहत इंक्लूड भी किया था। उसके बाद आता है राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर। देखो, ये जो है ना एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। लाइफ विद डिग्निटी, लाइवलीहुड होना चाहिए तुमको। अगर लाइफ में क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, लाइफ ऐसा होना चाहिए, लिव राइट टू लाइफ विद डिग्निटी और राइट टू लिव विद डिग्निटी। लाइवलीहुड चाहिए तुमको, हेल्थ ठीक होना चाहिए, आसपास का एनवायरनमेंट ठीक होना चाहिए। जैसे पॉइंट कैसे याद रखोगे, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ। ठीक, फिर तुमको एक बढ़िया सा शेल्टर भी चाहिए ना, खाद्य बस्त्र बासस्थान, ये तीनटा कथा राखिबই ना, ठीक है। अब तुम रह रहे हो शेल्टर में तो प्राइवेसी होना चाहिए, ऐसे याद रखना पॉइंट्स। अब पॉइंट्स याद रहेगा तो तुम लोग लिख सकते हो ना अंदर क्या है, ठीक है। अभी एक आता है राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर। तो बॉन्डेड लेबर का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। तो ये बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो था 1984 में, इट इल्यूमिनेटेड द कॉन्स्टिट्यूशंस कमिटमेंट टू एलिमिनेटिंग archaic and dehumanizing practices, reinforcing its progressive assets. बॉन्डेड लेबर को एक खत्म किया गया था। नेक्स्ट इज राइट टू फूड, खाना भी तो पड़ेगा। सो पीपल ऑफ इंडिया फॉर सिविल लिबर्टीज, ये याद नहीं रखने से भी होगा, रख लिया तो बहुत अच्छी बात है। यूनियन ऑफ इंडिया 2000 वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001, द कोड हाईलाइट्स फूड एसेंशियल, ठीक है, फूड एज एसेंशियल रिफ्लेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस लिविंग नेचर बाय एड्रेसिंग फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। इसीलिए तो अलग अलग स्कीम लाया गया है ना, 2-3 रुपए में जो अभी खाना मिलता है, ठीक है, जो गरीबी रेखा के नीचे है, तो वो क्या है, राइट टू फूड है ना, कि उन लोगों को खाना मिलने का अधिकार है, ठीक है। सो द कॉन्टिन्यूअल ब्रॉडनिंग ऑफ आर्टिकल 21 स्कोप एग्जाम्पलिफाइज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाज डायनेमिक कैरेक्टर। এই যে কণ্টিনিউৱাছ ব্ৰডনিং হৈ আছে আৰ্টিকেল 21-ৰ, কি সূচায় যে আমাৰ যিখন সংবিধান, এই সংবিধানখন খুব ডাইনেমিক হয়, এনচিয়ৰিং এভৰি চিটিজেন ৰাইট টু এ ডিগনিফাইড লাইফ এণ্ড এলাইনিং ইট উইথ द इवॉल्विंग नीड्स एंड चैलेंजेस ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिए और आप लोग लिखना चालू कीजिए, ठीक है। आप लोग लिख के हमें भेजिए, हम लोग देख के आप लोगों को बोल देंगे। ऐसे ही लिखिए, कोई बात नहीं, जैसे लिखना है, लेकिन अपने भाषा में लिखिए, आप लोग जिस तरीके से लिखना चाहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर जस्टिस। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है? जेंडर जस्टिस, ठीक है सर, जस्टिस रिगार्डिंग जेंडर विद द हेल्प ऑफ द रिलीवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड केस लॉस। जो रिसेंट केस लॉस है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उससे, वहाँ से विद द हेल्प ऑफ दैट और दोज प्रोविजंस और दोज केस लॉस आपको क्या करना है? कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे जो जेंडर जस्टिस जो है इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव क्या है, क्या जेंडर जस्टिस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन है, इसको आप लोगों को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ओके। सो इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नाउ इंट्रोडक्शन देखो, सेज द एमर्जेंस ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट इन द लेट 18th सेंचुरी। ये 18th सेंचुरी के जो पिछले वाले भाग है वहाँ पे दुनिया भर में वो फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रहा था। नाउ यहाँ पे जेंडर सेंसिटिविटी, जनरल अवेयरनेस अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस इन आवर सोसाइटी हैज़ कम ए लॉन्ग वे, ठीक है। तो ये बहुत पहले से चल रहा था। इंडियाज हिस्टोरिक शोज ए डीप कॉन्शियसनेस फॉर जेंडर सेंसिटिविटी दैट ट्रांसलेटेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। तो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है ये भी देखेंगे। आर्टिकल 14 जो है, इट कंसीडर्स सिटीजन्स टू बी इक्वल स्टेटस बिफोर द लॉ, ठीक है। तो जेंडर जस्टिस हो रहा है बेसिकली। यहाँ पे क्या बोला गया है कि फीमेल को पहले কি मतलब जो भी জৰুৰতে থে বা তেওঁলোকক প্ৰাধান্য দিয়া হোৱা নাছিলে, বাট আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনত এনেকুৱা আছে নেকি য'ত জেণ্ডাৰ জাষ্টিছৰ কথা কোৱা গৈছে, ঠিক আছে, যে ফিমেল জেণ্ডাৰকো মেল আৰু ফিমেলক সম অধিকাৰৰ কথা কোৱা গৈছে? ডেফিনেটলি আছে, আৰ্টিকল 14 আছে, ঠিক আছে। उसके बाद आर्टिकल 15 है ना कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेट हम लोग नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारा है ना, सेक्स, रेस, कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ। सो ये सेक्स जो है मतलब जेंडर के बारे में बात हो रहा है कि जेंडर के बेसिस में हम सभी को, किसी को मतलब किसी को भी हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? प्रोहिबिट नहीं कर सकते। फिर आर्टिकल 16 जो है, इट प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरी सिटीजन। तो क्या बोला गया है? एवरी सिटीजन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 16 भी कह रहा है। 14, 15, 16 ये जो 3 है ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे और जो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 39 जो है, वहाँ पे अगर आप अच्छे से देखेंगे विद इन द आर्टिकल 39 वहाँ पे एक क्या लिखा है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। उसी को यहाँ पे लिखा है कि आर्टिकल 39 मेंशंस द स्टेट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स इक्वलिटी पे फॉर वीमेन, ठीक है। आर्टिकल 42 के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे भी क्या बोला गया है कि द आर्टिकल 42 आस्क्स द स्टेट टू वर्क फॉर ensuring just and human condition for work and maternity relief। तो यहाँ पे মেটাৰ্নিটি ৰিলিফ का जो कॉन्सेप्ट है ये মানে মাতৃত্বৰ কাৰণে যি সুবিধা পোৱা যায় আৰ্টিকল 42 দিয়া গৈছে, আৰু তাৰ লগতে জাষ্ট এণ্ড হিউমেন কণ্ডিশ্যন অফ ৱৰ্ক, মানে সুন্দৰ এক কণ্ডিশ্যন হ'ব লাগিব কাম কৰিবৰ বাবে, তাতো মেল ফিমেল হিচাপে নহয়, সকলোকে প্ৰাধান্য দিয়া গৈছে কনষ্টিটিউশ্যনত, আৰু মেটাৰ্নিটি ৰিলিফ ফিমেলৰ কাৰণে দিয়া গৈছে। नाउ अभी केस लॉस जो है वहाँ पे ज़रा गौर करते हैं। तो क्या क्या केस लॉस है? जैसे सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये तो लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है। ये डिक्लेयर्ड, हाँ यहाँ पे लिखा है कि द लैंडमार्क जजमेंट डिक्लेयर्ड द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक अगेंस्ट द राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14, ठीक है। तो 14 के तहत जो इक्वल स्टेटस और इक्वलिटी बिफोर लॉ है एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ है, तो ये जो इक्वलिटी है, राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14, इसके खिलाफ ये था ट्रिपल तलाक, ठीक है। तो इसको सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इसीलिए ट्रिपल तलाक को क्या किया गया, हटा दिया गया था, राइट। द लैंडमार्क जजमेंट डिक्लेयर्ड द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक अगेंस्ट द राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज द वुमेन हैज नो से एंड द डिवोर्स इज प्रोसेस्ड विदाउट हर कंसेंट, ठीक है। तो पहले 3 बार बोलने से हो जाता था, लेकिन वही है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। द लैंडमार्क जजमेंट डिक्लेयर्ड द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक अगेंस्ट द राइट टू इक्वेलिटी, ঠিক আছে। এই লেণ্ডমাৰ্ক জাজমেণ্টটোতে কোৱা হৈছে ট্ৰিপল তালাক কি হয়, আৰ্টিকল 14ৰ যিবোৰ ফিলচফি আছে তাৰ এগেইনষ্টত হয়। চ' ডেট ইজ ৱাই বন্ধ কৰোৱা গৈছিলে। আৰু আগতে কি আছিল যে উইমেনৰ কনচেণ্ট লোৱাটো মানে প্ৰয়োজনীয় নাছিলে, 3 বাৰ কৈ দিলে চ' তালাক হৈ গ'ল। চ' সেই ক্ষেত্ৰত উইমেনৰ যিটো পাৰ্চপেক্টিভ আছে বা উইমেনৰ
যিটো অধিকাৰ আছে সেই অধিকাৰৰ কাৰণে এই যিটো ষ্টেপ হয় সাইৰা বানু ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইন্ডিया जी लैंडमार्क जजमेंट कोर्टे दिसिले वी कैन कोट दैट एग्जाम्पल. ठीक है, उसके बाद जो है, हाँ यहाँ पे 4 लिखना भूल गया मैं, कोई बात नहीं, हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले थे लेकिन ये बाद में मैंने ऐड किया, कोई बात नहीं. मेरी रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, मेरी रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. The court ensured equal rights of the females and males over the ancestral property succession. নৰ্মেলি কি হয় আমাৰ যেতিয়া নৰ্মেলি যেতিয়া আমাৰ এয়া হয় কি কয় মাটি বাৰী যেতিয়া ভাগ বতৰা হয় তেতিয়া কি হৈ যায় মানে বেচিকেলি মেল কাউণ্টাৰ পাৰ্টে কি পায় নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি মেল হয় তেতিয়া মাটি পায় আৰু সেই ক্ষেত্ৰত ফিমেলে কিয় পাব নোৱাৰে বুলি এটা কেছ দিয়া গৈছিলে আৰু যিটো কেছ আছিলে সেই কেছটো আছিলে মেৰী ৰয় ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ কেৰেলা আৰু তাতে কোৱা গৈছিলে যে কোৰ্টে যে মেল আৰু ফিমেলৰ ইকুৱেল মানে তেওঁলোকৰ राइट्स থাকিব टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी इन सक्सेशन. ठीक है, तो ये याद रखना है. अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग बोल सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन पे. ठीक है, नेक्स्ट इज जो लोटा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है. द कोर्ट स्टेटेड दैट गर्ल्स कंप्लीट राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ देयर ओन चॉइस. ये जो है राइट टू प्राइवेसी जो बहुत लोग चाहते हैं आप में से. ठीक है, तो ये जो है ये लोटा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का उस केस में कोर्ट का कहना है कि गर्ल्स जो है ये हैव कंप्लीट राइट टू मैरी ए पर्सन ऑफ हर ओन चॉइस. ठीक है, तो अब किसी को अगर बोलना है, अगर आप गर्ल हैं तो घर में बोल सकते हैं कि ये केस में ही बोला गया था. ठीक है, बाकी रिस्क आपके ऊपर. ठीक है, फिर आता है लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. नाउ लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में एक पीआईएल फाइल किया गया था एंड द पीआईएल बाय एन एसिड अटैक सर्वाइवर. आप सभी को मालूम होगा मूवी भी आया था बाद में. ended up with declaration of acid as a poison banning its sale. The court also ordered that no hospital could refuse treatment to an acid attack victim. तो जो बेसिकली क्या होता था, ये दिल्ली में बहुत चलता था, इंडिया के कई कोने में ये एक प्रॉब्लम था फीमेल्स के लिए कि एसिड अटैक किया जाता था फीमेल्स को, तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में इन लोगों का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था. एंड फाइनली जो लक्ष्मी जी है उन्होंने ये पीआईएल फाइल किया एंड बाद में ये जो एसिड है इसको पहले जैसे बिका गया था ओपन बाज़ार में, ठीक है, अब इसको पॉइजन की तरह डिक्लेयर किया गया एंड इसके बेचने में बैन भी लगाया गया था. सो डेट वाज आल्सो ए स्टेप टुवर्ड्स जेंडर जस्टिस. तो यहाँ पे सायरा बानो केस मतलब ट्रिपल तलाक, फिर मेरी रॉय केस जो है इक्वल राइट प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फिर लता सिंह जो केस है आपका टू मेरी पर्सन ऑफ योर चॉइस बेसिकली फॉर फीमेल्स. ठीक है, एंड लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस बैनिंग एसिड. ठीक है, एंड जो है एसिड अटैक सर्वाइवर्स को वेल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उससे रिलेटेड ये था. ठीक है, कंक्लूजन पे तौर पे लिख सकते हैं कि द इंडियन लीगल एंड जुडिशियल पर्सपेक्टिव is one that places a lot of significance at equalizing the gender landscape for equal opportunity and ensuring gender justice in its population. ठीक है, तो next question is discuss the contribution of civil society groups for women's effective and meaningful participation and representation in state legislature in India. बहुत ये बहुत बढ़िया सवाल था कि हमारा जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी जो ग्रुप्स है, ठीक है, क्या है हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, उन लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या है वुमेन का इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन में इन स्टेट लेजिस्लेचर्स इन इंडिया. ठीक है, तो बेसिकली ये जो है क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कुछ दिया है, लेकिन आपका बेसिकली जो है जैसे पॉइंट करके आप एग्जाम्पल के तौर पे इसको लिखने में थोड़ा मुझे भी मतलब ये दिक्कत हुआ था. ठीक है, तो कोई बात नहीं, जो सच है वो तो बोलना चाहिए. बेसिकली अगर सिविल एपीएससी में ऐसे तो इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाता है, बेसिकली पूछा जा सकता है कि सिविल सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, तो उससे रिलेटेड कुछ है यहाँ पे. एंड यहाँ पे आप लोग को बोला भी जा सकता है कि एक दो जो सिविल सोसाइटी है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में भी वहाँ पे एग्जांपल कोट करना है, तो ऐसा हो सकता है. सो सिविल सोसाइटी बेसिकली वो कम्युनिटी और ग्रुप्स है which functions outside the government. ঠিক আছে, তেওঁলোক গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৰ্ট নহয়, এই অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰ কি হয় চিভিল ছ'চাইটি বুলি কওঁ, যোনে বেলেগ বেলেগ কামৰ লগত জড়িত হৈ থাকে সমাজৰ. ঠিক আছে, প্ৰভাইডিং ছাপোৰ্ট এণ্ড এডভকেচি ফৰ চাৰ্টেইন পিপল और इश्यूड इन सोसाइटी. ठीक है, तो सोसाइटी के कुछ लोगों को सपोर्ट करने के लिए, एडवोकेसी करने के लिए
ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, दे वर्क बिहाइंड द कर्टेन्स टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग। तो कैसे काम करते हैं, दे वर्क बिहाइंड द कर्टेन्स टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग। इन ए नेशन एज बिग एज इंडिया वॉलंटरी सिटीजन ग्रुप्स आर नेसेसरी टू ब्रिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस। बेसिकली ये क्या है, वॉलंटरी सिटीजन ग्रुप्स है जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं आउटसाइड द गवर्नमेंट। और मतलब जैसे उन लोगों के द्वारा कभी कभार ऐसे उन लोगों का जो स्टेप है उससे पॉलिसी क्या बोलते हैं उसको, पॉलिसी मेकिंग में भी असर दिखता रहता है। ठीक है, वो लोग बहुत सारे कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे रिलेटेड पॉलिसीज में द टाइम टू टाइम गवर्नमेंट बनाते हैं। तो ये है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए बेसिकली सिविल सोसाइटी का रोल होता है। ठीक है, जैसे एक होता है ना, सिविल सोसाइटी होगा तो सोशल वर्क करेगा, किसके लिए करेगा, कम्युनिटी के लिए करेगा, और कम्युनिटी अगर स्ट्रांग होगा तो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगा। ठीक है, और ऐसे ही कम्युनिटी से भी फिर से लोग आएंगे, सिविल सोसाइटी को ज्वाइन करेंगे, फिर ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा और डेमोक्रेसी और स्ट्रांग होता रहेगा। कंट्रीब्यूशंस क्या क्या है देखिए, पहला तो है रेजिंग अवेयरनेस। ठीक है, ओके, raising awarenesses. Basically, civil society groups have educated the masses in small batches to build up necessary awareness at the grassroots level. तो लोगों को grassroots level पे अवेयर करने के लिए ही, इन लोग एजुकेट करने के लिए बेसिकली सिविल सोसाइटी काम करते हैं। वेरियस इनिशिएटिव्स बाय स्मॉल ग्रुप्स हैव बीन टेकन इन दिस रिगार्ड, लाइक 50% जो रिजर्वेशन है, ठीक है, वो सिविल सोसाइटी के द्वारा ही किया गया था और इसको बाद में लिया गया है। पॉलिसी चेंजेस में दिस ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड लेजिस्लेटिव पुश वाया प्रेशर ग्रुप्स टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग बाय लेजिस्लेचर। दे आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन रिसर्च एंड डाटा कलेक्शन टू आइडेंटिफाई की प्रॉब्लम एरियाज एंड वर्क ऑन देम स्पेशली। कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात किया जाए तो दिस ग्रुप्स हैव बीन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू वीमेन एंड हेल्पिंग देम टू बिल्ड अप नेसेसरी स्किल टू पार्टिसिपेट इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो बोला गया है कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट, ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ऐसे बोल नहीं सकते कि कैसे हेल्प किया है, वुमेन को कैसे हेल्प किया है, इसको समझना पड़ेगा। जो क्वेश्चन है और आंसर आप लोगों को लग सकता है कि ये जो है लाइक अधूरा जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे, डिस्कस वही होगा, जनरल जो कंट्रीब्यूशन है उसको ही डिस्कस करेंगे, लेकिन फीमेल सेंट्रिक हम लोग कर देंगे। जैसे 50% रिजर्वेशन के बारे में मैंने बोला, पॉलिसी चेंजेस के लिए भी देखिए एक लेजिस्लेटिव पुश होना जरूरी है ना। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव पुश के लिए जैसे जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसको ज़्यादा आगे लेके आने के लिए, ओके, तो इन लोग काम करते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नेसेसरी स्किल्स होता है अलग अलग लेजिस्लेटिव प्रोसेस में वीमेन को भाग लेने के लिए, तो वहाँ पे सिविल सोसाइटी क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं फॉर वीमेन लीडर्स टू कम एंड कलेक्टिवली स्ट्रेटेजाइज फॉर ग्रेटर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ये बेसिकली राजस्थान, हरियाणा, गुजरात जैसे स्टेट्स में ज़्यादा होता है। ठीक है, अब बाकी जो जनरल फंक्शंस है, ठीक है, इसको ज़रा याद रख लेना कि क्या क्या है। अवेयरनेस बिल करना, एडवोकेसी करना, नॉन क्रिमिनल केसेस के लिए लोगों की जो ज़रूरतमंद जो लोग हैं उन लोगों के लिए एडवोकेसी करना, मोबिलाइजेशन करना, फैसिलिटेशन देना, सर्विस डिलीवरी, किसी भी सर्विस डिलीवरी करना। ठीक है, अवेयरनेस एडवोकेसी इंपॉर्टेंट ही है, फिर सर्विस डिलीवरी, फिर मॉनिटरिंग, फिर कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करना। तो ये जो है, जो भी उन लोगों का काम है, जो भी चीज़ें हो रहा है उसको मॉनिटर करना भी इन लोगों का काम होता है। ठीक है ना, ये जो है 50% रिजर्वेशन वाला, क्योंकि अवेयरनेस बिल्डिंग में ये आ जाएगा। ठीक है, रेजिंग अवेयरनेस, पॉलिसी चेंजेस करते हैं, एडवोकेसी भी यहाँ पे तो नहीं होगा लेकिन पॉलिसी चेंजेस वो लोग करते हैं। ठीक है, फिर आपका जो है कैपेसिटी बिल्डिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको कुल मिला के आप लोग की तरफ से भी लिखने का कोशिश कीजिए, और बेहतर आंसर अगर लिख पाए तो हम भी हमारे आंसर आप लोगों को, मतलब आप लोगों को देख लेते हैं, उसके बाद हम दे देंगे। ठीक है, आप लोगों को फीडबैक दिया जाएगा। देयरफॉर द इफेक्ट्स ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ऑन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ इंडिया कैन नॉट बी अंडरमाइंड। द पासिंग ऑफ द वीमेन रिजर्वेशन बिल 2023 इज a testimony to the positive effects that civil groups have on the nation. So ये जो है ये भी सिविल सोसाइटी की वजह से ही उन लोगों का जो स्टेप्स है उसका इफेक्ट इसके तौर पे वुमेन रिजर्वेशन बिल में झलक, वो जो झलक है वो देखने को मिला है, ऐसा मानना है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग एग्जाम शास्त्र। अगर आप लोगों ने हमारे फ्री आंसर राइटिंग ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी आंसर लिखना चालू किया है, उन लोगों ने भेजा है, उन लोगों का कॉपी भी मिला है, उन लोगों को फीडबैक मिला है। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए एंड देखते रहिए एग्जाम शास्त्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।